Good morning, students. Today we are going to complete exercise 16.2, right? So write down date and day. Fine. So first of all, I will explain सम नंबर 1, 2 and 3 जो आपको कल होमवर्क के लिए दिए गए थे सम, उनको मैं विद आंसर आपको एक्सप्लेन करूंगी. सो नोट डाउन these answers or you can match your solved sum with these answers. Fine. As I have not shared answer key with you. Fine. So let's do. First sum, name the angles. I'm going to solve sums from C part. So we can write this angle as angle ABC or angle CBA. Right. This is angle MNO and angle ONM. जिस पर एंगल बन रहा है, वर्टेक्स पॉइंट है, उसको हम सेंटर में प्लेस करते हैं. दिस इज एंगल PQR कॉमा एंगल RQP. राइट. नेक्स्ट एंगल XYZ and ZYX. Fine. So this is the solution of sum number first. Sum number second, आपने ये सम अपनी नोटबुक में सॉल्व किया होगा, उसका आंसर मैच कर सकते हो. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और एंगल BAC, एंगल ABD, एंगल DCA एंड एंगल CDB. फाइन. ए पर बना, बी पर, सी पर और डी पर. फाइन. सी पॉइंट एंगल P कॉमा S कॉमा R कॉमा Q. राइट. और एंगल P पे कैसे बनेगा? SPQ. एंगल SPQ और Q पे एंगल PQR और R पे एंगल QRS और S पे एंगल RSP. राइट. इन द सेम वे वी विल सॉल्व पार्ट डी. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई एंड एंगल एफ. because 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 it's a hexagon figure, right? Or you will write down its angles in 3 points. Fine. Let's do sum number third from part D. So we will measure angle of this sum with the help of protractor. So हम inner पार्ट से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ये जो एरो है, रे है, वो राइट साइड है, तो राइट साइड 0 से स्टार्ट करेंगे. 0 10 20 तो 90 तक है. फाइन. इट्स इक्वल टू 90. नेक्स्ट ई पार्ट. ई पार्ट राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड से है. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम आउटर साइड. 0 से स्टार्ट करेंगे. 0 10 20. राइट. So it's equal to 40, 45, 47. It's equal to 47 degree. Next is part F. So we will place protractor at vertex point. So it goes to left side. So we will use जिस साइड में आपकी रे होगी वहां से 0 से स्टार्ट करेंगे. अगर राइट साइड है तो राइट साइड 0 से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड 0 से स्टार्ट करेंगे. मीन्स लेफ्ट साइड 0 से स्टार्ट करेंगे. तो ये कौन सा स्केल बनना है? आउटर स्केल. फाइन. तो ये आप चेक करोगे कहाँ लाई करती है. ये 0 10 20 30 40 50 55 से ये ग्रेटर है, 56 पर है. राइट. सो इट्स इक्वल टू 56 डिग्री. आपका जो भी मेजरमेंट है 1 और 2 पॉइंट वेरी कर सकता है. राइट. नाउ दिस रे लाइज टू राइट साइड. तो ये राइट साइड की तरफ है. वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0. यस. तो वी विल यूज इनर स्केल. तो ये है 145. 145. नेक्स्ट इज एच पार्ट. We will place this line at this point. So it is of 180 degree, means straight angle.
right? 180 degree. Clear? Now we will solve its fourth sum. Draw the following angles with the help of protractor. तो protractor की help से हम angle draw करेंगे with its construction. Fine? First of all, we will draw a baseline. We will draw a ray. कोई भी नेम ले सकते हैं, O A. Fine. Now we will place protractor at point O. O पे protractor को place करेंगे. So this ray is on the right side. So we will use from 0 degree, means inner scale 40 degree. 0, 10, 20, 40, 50. Then mark a point B against 40 degree of the protractor. This is B point. Join OB. तो OB को join कर देंगे. Right? So this is our required angle. Fine. It is important to draw arc with the help of compass. तो जो ये arc है वो हम compass की help से ही draw करेंगे. आप इसको pencil से ऐसे ही just arc show नहीं कर दोगे. Fine. It is equal to 40 degree. Angle AOB is equal to 40 degree. Now we will do its construction. इस चैप्टर में हमारे पास 2 टाइप्स की कंस्ट्रक्शन है. फर्स्ट, construction of an angle using a protractor. Second, construction of special angles using compass. Right? So we will do its construction as first point is draw a ray OA. आपने जो भी पॉइंट मेंशन करना है वो यहाँ पे उसी का नेम यहाँ मेंशन करोगे. ड्रॉ अ रे OA. सेकेंड, प्लेस द प्रोट्रैक्टर ओवर OA. तो हमने प्रोट्रैक्टर को OA के ऊपर प्लेस किया सच दैट द बेस ऑफ प्रोट्रैक्टर का जो बेस है इस लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए. फाइन. एंड द सेंटर ऑफ द बेस कोइंसाइड विद द पॉइंट O. सेंटर कौन सा? ये वाला सेंटर इस O पॉइंट के ऊपर आना चाहिए. क्लियर? स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री. तो उसके बाद हम 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे. आपने डायरेक्शन जरूर नोट डाउन करनी है. या किस डायरेक्शन में राइट साइड जा रहा है तो राइट साइड 0 से स्टार्ट करेंगे. लेफ्ट साइड जा रहा है तो लेफ्ट साइड 0 से स्टार्ट करेंगे. फाइन. स्टार्ट फ्रॉम 0. रीड द इनर स्केल. तो ये राइट साइड है तो इनर स्केल यूज करेंगे. लेफ्ट साइड है तो आउटर स्केल यूज करेंगे. टिल इट रीच 40 डिग्री. मार्क अ पॉइंट बी. अगेंस्ट भी लिख सकते हो या सिंपल भी लिख सकते हो कि मार्क द पॉइंट बी. ज्वाइन ओ बी. ए ओ बी इज इक्वल टू 40 डिग्री. फाइन. सो आपने इसमें हमारे पास 8 पॉइंट्स है. आपने हर किसी पॉइंट में कंस्ट्रक्शन लिखनी है. मिनिमम 4 पॉइंट्स में कंस्ट्रक्शन कंपल्सरी है नोट डाउन करनी. फाइन. उसके बाद अगर आपको लर्न हो जाता है तो आप नहीं लिखोगे. अगर लर्न नहीं होता तो आप 8 के 8 पॉइंट्स में स्टेप नोट डाउन करोगे. फाइन. So first step is draw a ray OA. Then place the protractor over OA such that the base of the protractor coincides with OA and the center of the base coincides with the point O. Start from 0 degree. Read the inner scale till it reaches 40 degree. Join OB. Then AOB is the required angle. Clear? Now I'm going to draw 75 degree angle. So first of all draw a ray draw की O A. Then place the protractor over point O. Fine. Such that the base of the protractor coincide with OA and center of the base coincide with point O. Fine. Start from 0 degree. रीड करना स्टार्ट करेंगे. 75 तक लेके जाना. 70 + 75. राइट. मार्क अ पॉइंट बी. तो इसको ज्वाइन करेंगे. ज्वाइन ओ बी. क्लियर? देन we will draw an arc. Right? This is 75 डिग्री. क्लियर? आपने सेम ही कंस्ट्रक्शन नोट डाउन करनी है. जस्ट एंगल चेंज कर दोगे. 40 डिग्री की प्लेस पे क्या आएगा? 75 डिग्री. फाइन. In this way we can
राइट डाउन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एज ऑफ पार्ट ए। तो ए पार्ट की तरह हमने इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नोट डाउन करने हैं, राइट। बस एंगल चेंज करोगे आप, बाकी पॉइंट सेम ही रख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ रे, then we will place this protractor on ray OA and point O coincides the center of the protractor. Then read angles from 0 degree up to 60 degree. Mark a point B against 60 degree. Then join OB. Then we will draw an arc with the help of compass which is equal to 60 degree, right? So angle AOB is equal to 60 degree is the required angle. In the same way, we will construct angle of 84 degree. Draw a ray OA. Then we will place this protractor on a ray OA. Fine. And we will check the point center of the protractor will lie upon O. Read angles from इनर स्केल फ्रॉम 0 डिग्री। तो 84 डिग्री तक लेके जाना हमने, 0 10 20 80, दिस इज 85। तो 85 से पहले एक पॉइंट 84, मार्का पॉइंट बी अगेंस्ट 84 डिग्री, ज्वाइन ओ बी, राइट। एंड वी विल ड्रॉ एन आर्क विद द हेल्प ऑफ कंपास. It is equal to 84 degree. You will write down steps of construction as mentioned in part A and B. Fine. Just change the angle. तो मैंने ये पॉइंट सेम ही रखे है, तो आपकी कंस्ट्रक्शन में पॉइंट सेम ही आएंगे, जस्ट एंगल चेंज होगा. फाइन. So students, you will solve its remaining parts from E to H of sum number 4th yourself. And next, sum number 5th. Sum number 5th is construct these angles with the help of ruler and compass. We will solve these angles in live class. We will construct these angles in live class. Fine. So you should have compass for this. Sum number 50 is same as these angles. So we will construct angles of sum number 5th as these. तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 60 डिग्री का एंगल अगर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले एक रे ड्रॉ करेंगे पी क्यू. तो कंपास आपने कितने भी रेडियस की कंपास ओपन करनी है उसे आर्क ड्रॉ करनी है लाइक दिस. फाइन. तो इस पॉइंट को यहाँ सी पॉइंट मेंशन करोगे. सी से कंपास को बिना हिलाए, कंपास को आपने नहीं हिलाना, कंपास का रेडियस सेम ही होना चाहिए, इतना पहले था. अगर हिल जाता है तो आप यहाँ से मेजर कर सकते हो. फाइन. देन फ्रॉम सी पॉइंट से आपने कट करना है इस आर्क को. तो इसमें से पॉइंट मेंशन करोगे डी, जो इसको कट करेगा. डी और पी को कंबाइन करते हुए आप इसको एक्सटेंड करोगे विद द हेल्प ऑफ स्केल. दिस इज अ रिक्वायर्ड एंगल. फाइन. तो इसकी हम कंस्ट्रक्शन लाइव क्लास में करेंगे. देन अगर आपको 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना, कंस्ट्रक्ट करना आ गया विद द हेल्प ऑफ कंपास, देन वी कैन ड्रॉ एंगल्स ऑफ 30 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री. तो इसी से हम 30 डिग्री का कैसे कर सकते हैं, अब आप इस कंपास के रेडियस को चेंज कर सकते हो दिस वे देन दिस वे. जहाँ पे दोनों आर्क्स मीट करेंगी उसको हम मिलाएंगे इस पॉइंट से, देन इट विल बिकम एंगल ऑफ 30 डिग्री. फाइन. इन द सेम वे पहले हम सबसे पहले 60 से स्टार्ट करेंगे. कंपास ऑफ एनी रेडियस, आर्क ऑफ एनी रेडियस, देन सी से उसी आर्क का हम कट करेंगे, देन अगेन सेम आर्क, फिर ज्वाइन करते हुए 120 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा. फाइन. सो स्टूडेंट्स, वी विल अगेन understand and solve these sums in our live class. Fine. So you should have compass, pencil and scale. Fine. Okay students, thank you.